So, good morning, student. Now, today's is your first class of bio. So, welcome in bio class. So, today's topic is living word. Living word. You just prefer NCRT book because it is complete book. It is very important or high contents. It's include very authentic contents, so you just prefer NCRT. There is no need of other book. So we will start unit 1 or chapter 1. Unit 1, diversity of living organisms, and it's include to especially chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Four chapters are included in unit 1. So or this unit 1 is living world. So in this chapter basically you will read that terms living, what is the meaning of living, second diversity in living organisms, third taxonomy categories, and fourth taxonomical aids. So these are the some important point which you have read in living world. So student, again I welcome you in your bio class. So start living word. So student, have you heard living word in class 10? So can you tell me what is the meaning of alive? means Alive means when basic concept of nutrition, respiration, transport, excretions are going in any organisms, we can say we are living. So living world means there are wide range of living organisms on different type of living organisms to are amazing the extraordinary habitat means कि हर जगह पे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स बी आर cold mountain like deciduous forest, ocean, freshwater lake, deserts or hot springs. These are the uh, where living organisms can live. So there are a lot of diversity, wide range of living type. Clear student? The beauty of the galloping horse, of the migrating birds, valley of flower or attracting shark evokes are the deep sense of wonder. The ecological conflict and the cooperations among members of population and amongst population of community or even the molecular traffic inside a cell make or deeply reflect on what is indeed of life. मीन्स इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो आपका अर्थ है ये एक इकोलॉजी को शो करता है, ठीक है. एंड कोऑपरेशन जिसमें कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके पॉपुलेशंस जो कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट के पॉपुलेशंस, ये सब एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं. और यदि एक हम सेलुलर लेवल पर देखें तो सेलुलर लेवल पर सेल्स किससे बनी, मॉलिक्यूल्स से बनी है. तो ये सब चीज़ क्या है, एक कहीं ना कहीं एक लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट को शो करती है. द क्वेश्चन हैज़ टू implicit questions within it. The first is technical ones and seek answer what is living in opposed to non-living. यदि हम देखें कि लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है. एंड द second is philosophical ones. The seek answer is what is purpose of life. And scientists, we shall not attempt answering the second questions. We will try to reflect on what is living. तो लिविंग में there are some figures are given there. They all are living, ठीक है, और इनका हैबिटेट डिफरेंट है, डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट हैबिटेट है, फूड हैबिट्स डिफरेंट है, बट दिस शो diversity of living organisms. So next is living meaning. What is living? So what is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics habited by living organisms. Yes, यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यदि बात करें
तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो फॉलोइंग कैरेक्टर. फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं उसको देख के जिस तरीके की सेंस हम शो करते हैं, जो सेंसिटिविटी हमारी अपने एनवायरनमेंट के सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और किसी भी कंडीशंस को हमारे माइंड में अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो माइंड में अचानक से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, सुटेबल रिस्पॉन्सेज, दीज ऑल शो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर. मीन्स यदि हम लिविंग को देखते हैं तो लिविंग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं और उसमें किसी तरीके से ये प्रोसेस हो रही है, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्सेज कम टू अवर माइंड इमीडिएटली. ठीक है. वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म. यदि कुछ और हम इंक्लूड करें तो मेटाबॉलिज्म एक और टर्म थोड़ा डीप लेवल पर, तो लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, interact and emergence to this list. मीन्स इन टर्म्स को हम लोग इंडिपेंडेंटली रीड करते हैं. बहुत सारे फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, दिस इज़ मेटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, लाइक एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट. कुछ हमारी बॉडी के सेल्स में कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सेल्फ रेप्लिकेशंस को शो करते हैं, लाइक न्यूक्लियस, लाइक डीएनए, जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. सेल्फ ऑर्गेनाइज, कभी कभी एक सेल के अंदर भी बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल्फ ऑर्गेनाइज हैं. मीन्स वो ऑटोनोमस बॉडी की तरीके से वर्क कर रहा है. इंटरैक्ट द इमरजेंस टू दिस लिस्ट. और इस तरीके से ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास. और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लाइक ग्रो, इंक्रीज इन मास. ग्रो को हम कैसे शो करेंगे कोई चीज़ ग्रो हो रही है, क्योंकि ग्रो के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, मास भी बढ़ेगा, नंबर भी बढ़ेगा. एंड ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. और ये दोनों जब कैरेक्टरिस्टिक एक साथ होंगे तो इट विल बी शो ग्रोथ. मतलब ग्रोथ में दो चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, इंक्रीज इन मास, मास भी इंक्लूड हो रहा है और नंबर्स भी इंक्रीज हो रहा है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो by cell division. Multicellular organisms like unicellular organisms, multicellular organisms you have already read in class 10. Multicellular organisms क्या हैं, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, by cell division. In plants growth of cell, अब plants के reference में, in plants the growth by cell division occur continuously throughout their life span. प्लांट्स में आपको पता है ना कि कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ कभी रुकती नहीं है. बट इन एनिमल द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज. बट एनिमल में क्या है कि ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है. ठीक है. एंड प्लांट्स की ग्रोथ कंटिन्यूस होती है. कभी कोई देखा होगा कि कोई ब्रांच बढ़ रही है, कभी लीव्स बढ़ रही हैं, कभी रूट्स बढ़ रही है. बट जो ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेशली एनिमल, उनकी ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है. However, cell division occur in certain tissues to replace the lost cell. और इस तरीके से कुछ सेल बन रही हैं, कुछ सेल लॉस्ट हो रही हैं, कुछ क्रिएट हो रही हैं. और जो क्रिएटिंग सेल्स हैं वो लॉस्ट सेल्स की प्लेस को फिल करते जा रहे हैं. ठीक है. तो सेल डिविजन्स ऑकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, सेल डिवीजन. अमीबा में आपने रीड किया हुआ अमीबा पैरामीशियम, इसमें सेल कौन सा फिजन हो रहा है, मल्टी सेलुलर बाइनरी फिजन, और एक सेल दो में डिवाइड होती है. वी कैन सी इन ओनली ऑब्जर्व दिस इज इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर्स ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप. यस, माइक्रोस्कोप में हम सेल की ग्रोथ को देख सकते हैं. ठीक है. यदि एक विट्रो कल्चर मीन्स विट्रो कल्चर की लैब में एक कल्चर तैयार करना, उसका जो कंडीशंस हैबिटेट जस्ट लाइक नेचुरली होना चाहिए, और उसमें जब सेल ऑफ मास, स्पेशल सेल ऑफ मास डाल जाता है तो वो ग्रो करके एक बहुत बड़ा सेल ऑफ मास
फॉर्म हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर. ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में भी ग्रोथ आप हम देख सकते हैं. क्लियर? Counting the number of cell under microscope, in majority of higher animal and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं. यदि किसी की ग्रोथ हो रही है मतलब वो सेल रिप्रोड्यूस हो रही है. ठीक है ना. रिप्रोडक्शन भले ही दो टाइप का उसमें डिवीज़न हो रहा है. डिवीज़न भले ही दो टाइप का है, एक माइटोसिस डिवीज़न, एक मियोसिस डिवीज़न. तो ग्रोथ यदि हो रही है तो वो उसमें कहीं ना कहीं सेल डिवीज़न ही हो रहा है. और सेल डिवीज़न का मतलब एक प्रकार का रिप्रोडक्शन. ठीक है. लाइक एक अमीबा का एग्जांपल्स लेते हैं तो अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है और वो अमीबा की ग्रोथ भी कर रहा है प्लस अमीबा का रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है. वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज ऑफ बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ. अब हम लोग को ये बात क्लियर हो गई है कि यदि ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं बॉडी मास भी इंक्रीज हो रहा है. नॉन लिविंग objects also grow if they take increased body mass as a criteria for body mass as a certain of growth. Mountains, uh, boulders and stand round to growth. However, this kind of growth exhibited by non-living objects by the accumulations of material on the surface it. कुछ कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक गम वगैरह, उसको वाटर में डाल दो तो फूल जाती है ना. मतलब उसमें एक्यूमुलेशन मटेरियल जो है उसका साइज बढ़ रहा है एब्सॉर्ब करके. बट इट इज़ नॉट ग्रोथ. इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फॉर्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ को हम कब कहेंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है ग्रोथ इन फ्रॉम इनसाइड. ग्रोथ अंदर से हो रही है. ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ हो रही है. तो अब इतना क्लियर हो गया कि ग्रोथ एक ऐसा टर्म नहीं है जिसके बेस पर आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करो. ये क्लियर है कि लिविंग में ग्रोथ हो रही है बट नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहा है. कैसे? यदि आप एक वुडन पीस को वाटर में डाल दो तो वो ग्रो अप हो रहा है तो वो तो ग्रोथ नहीं है. तो वी कैन से ग्रोथ इज फ्रॉम ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब इसके बेस पर हम ग्रोथ को एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेस पर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and there we will understand that is the characteristics of living system. Conditions under which we can observe in all living organisms have to explain that we understood that it is characteristics of living system. मीन्स लिविंग सिस्टम यदि ग्रोथ हो रही है तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर हो रही है. उस कंडीशंस को भी हमें कंसिडर करना होगा. अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डेड ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं होती है. सो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो क्या हम रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स reproduction refer to a production of progeny possessing features more or less similar to those of the parents. Invariably or implicitly we refer as sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. यस, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि रिप्रोडक्शन हो रहा है और रिप्रोडक्शन से प्रोजिनी फॉर्म हो रही है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हो रही है. ठीक है, जो कि मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. जो अपने पेरेंट्स से के किसी न किसी तरीके से सिमिलर है. वो ज़्यादा और कम हो सकता है बट वो सिमिलर है. इनवेरिएबली द इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यदि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के साथ है, मतलब थोड़ा वो मैच कर रहा है अपने पेरेंट्स से, थोड़ा डिफरेंट है, इट इज़ ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण है. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली मीन्स ऑल्सो. और इक्वली यदि बिल्कुल सेम है मतलब एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस हुआ है. क्लियर स्टूडेंट? आप लोगों ने रीड किया क्लास 10th में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
सिंपल सेल डिवीज़न है और किस तरीके का सेल डिवीज़न है, माइटोटिक सेल डिवीज़न मीन्स एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में डिवाइड हो रही, तो वो जो डिवीज़न होता है वो उसमें जो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स मिलता है वो पूरी तरीके से पेरेंट्स के एक जैसा होता है, देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम वेरिएशंस आते हैं। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। हाँ, जैसे फंजाई लिया हुआ है ना, फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें भी है, लाइक लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बडिंग वगैरह हम देख रहे हैं, ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इन प्लानेरिया में आप लोग ने रीजनरेशन क्लास 10th में रीड किया हुआ है, तो ये क्या है, ट्रू रीजनरेशन है। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। रीजनरेशंस क्या होता है कि बॉडी का कुछ पार्ट यदि मिसिंग हो रहा है तो वो रीजनरेशन के थ्रू अगेन रीगेन, वो उसको रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो रीजनरेशंस भी एक सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। नाउ नेक्स्ट we have already defined growth is equivalent to the increase of cell number or mass. Here we notice that a single cell organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. अब ग्रोथ में भी यदि इक्वली सेल नंबर सेल मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो लाइक इन सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स का एक एग्जांपल्स लें, वे are not very clear about the uses of these two terms, growth or reproduction. Single cellular organisms में you cannot differentiate between the growth and reproduction. एक सेल यदि दो में डिवाइड हो रही है तो ग्रोथ को भी शो कर रहा है और ये रिप्रोडक्शन को भी शो करता है। Clear student? Are you clear this line which is given in our points? The next we have already further, there are many organisms which do not reproduce, like moles, sterile workers, be infertile human couples. Thus, reproduction also cannot be all inclusive defining characteristics of living organisms. अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ऐसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। एक एग्जांपल्स दिया है, स्टेराइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो क्या रिप्रोडक्शन को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये एग्जिस्ट तो करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा वो भी अलाइव है, तो इट इज़ नॉट अ रिप्रोडक्शन, इज अ basic feature of living organisms. Clear student? Of course, non-living object is capable of reproduce or replicating by itself. Another characteristic feature life is metabolism. All living organisms are made up of chemical. अब एक टर्म आता है मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? यदि मेटाबॉलिज्म है तो क्यों मेटाबॉलिज्म है? बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? बायोकेमिकल से। ऐसे केमिकल से बनी हो, वही केमिकल कंटिन्यूसली कुछ उसमें सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ उसमें डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। मीन्स एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली हो रहा है और हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस में नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वी आर अलाइव। यदि हमारी बॉडी के केमिकल्स इक्विलिब्रियम पर आ जाए तो वी आर नॉट अलाइव, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले सकते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म बॉडी में हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करेगा। सो आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा आपको लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। ग्रोथ के बेस पे लिविंग नॉन लिविंग को नहीं डिस्क्राइब किया सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बेस पे नहीं किया सकता है। मीन्स यदि रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता बट वो अलाइव हैं, सो देयर आर नेक्स्ट टर्म इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल। These chemical small and big belonging to various classes, size and functions. ये इनकी classes हैं। chemicals क्या हैं? प्रोटीन हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। These all are chemical. हॉर्मोन्स भी केमिकल हैं,
ठीक है, मैसेंजर केमिकल्स, तो दीज ऑल आर केमिकल्स। तो हमारी बॉडी बेसिकली किससे फॉर्म है, केमिकल्स से, विच वी कैन से बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स से कहते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म है, इट इज़ कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। दीज कन्वर्सेशंस आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, एंड दीज केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हुई, मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो लिविंगनेस को शो कर रहा है। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. They are unicellular or multicellular. All plants, animal, fungi, microbes exhibit metabolism. Means all living organisms show metabolism. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसा नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म शो ना हो, वो भले एक सिंपल लेवल का मेटाबॉलिज्म हो या कॉम्प्लेक्स लेवल का हो, बट मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। क्लियर? So metabolism exhibit microbes exhibit metabolism. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. Metabolism को basically define कर सकते हैं all chemical reaction which is going on in our body. Clear student? आपको पता नहीं आपके अंदर बॉडी में कितनी रिएक्शंस चल रही हैं, कितनी प्रोसेस हो रही है, कितने फैट जो है एसोसिएट हो रहे हैं, कितने फैट डिग्रेडिएट एसोसिएट हो रहे हैं, कुछ बन रहा है, कुछ कॉस्ट, कुछ लॉस्ट हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रही है, हज़ारों सेल्स फॉर्म हो रही हैं, हज़ारों सेल्स क्या हो रही हैं, लॉस्ट हो रही हैं। सो दीज आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सहिबिट metabolism. Non-living organisms exhibit metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. मेटाबॉलिज्म तो बॉडी के बाहर भी हो रहा है, हम लैब के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो क्या वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना? यदि हम मेटाबॉलिज्म के बेस पे यदि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म तो कि जैसी रिएक्शंस तो हम लैब में भी कर रहे हैं, तो वो तो नहीं है।